ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरिः हरि ओम्। ओम। आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड पसंद आता है कि नहीं आता है? देखा आपने? बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत बढ़िया मार्ग। हाँ। ये दिख रहा है कि आपका ठाकुर के आशीर्वाद हो रहे हैं, माँ ठाकुर स्वामी जी के। तो आज का आर्टिकल है वो रिव्यू करेंगे सतीश वेग। सतीश प्रणाम वेग। महाराज जी। हाँ भाई, प्रणाम रिव्यू करो। प्रणाम महाराज। मैं स्टार्ट महाराज? हाँ, स्टार्ट करो। अच्छा महाराज। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑन एक्सपीरियंस। जी महाराज। The mind is thinking of gross forms and material objects all the time. It has become jada, stone-like. In order to transform the mind, think of the luminous form of the holy personality. Then the activity of the mind will be turned into new channels. Instead of little I, now we come to think of something nobler and higher, and the mind becomes infused with luminosity and bliss of the divine form. From the blissful form, go deeper. Think of his noble attributes. Do not stop there. As you reach the higher, purer, subtler planes, your consciousness expands till it merges with the infinite consciousness. Thus, by taking help of a physical symbol, the divine name, you are transported from the mental plane to the threshold of the spiritual plane. Do your japa consciously, knowingly, and intelligently, dwelling on its meaning. Meditation should be like Nirvashana Teladara. Spiritualize the mind by dwelling upon the Lord and love with love and joy through steady, prolonged meditation. This is the way from the gross to the subtle and to the spiritual. Atma permeates the entire body, but of all the centers in the body, we feel the concentrated consciousness more in the heart. Withdraw your mind to the inner light there. Then gradually you will have the experience of living consciousness there. The highest state, however, is seeing the self in everything and everything in the self. In this state, the devotee experiences the presence of God within and without. He attains same-sightedness. But we cannot go directly from the form to the formless. We have to pass through all these stages. So we worship a personality with the noblest virtues. When meditation becomes steady and self-consciousness is awakened, all worldly thoughts, even of the deity, disappear and we experience the Brahman. Till then, one should continue with the japa and meditation from form to the formless, from name to the nameless, and from thoughts to the one beyond all thoughts. महाराज क्लियर है ना? महाराज सुन रहा है? ठीक है, हाँ ठीक है, मैं तो सुन रहा हूँ। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जाए, ठीक है। The way to peace. हाँ. Practicing japa and meditation in a routine, monotonous way do not give us joy or peace. The peace we get through attainment or enjoyment of worldly objects does not last long. It is momentary and the mind starts hankering for something else. It vanishes when faced by some unpleasant thing. We want lasting peace, but the way to peace is very difficult. It is like walking on the sharp razor blade. We have to control the horses of senses by tightly holding the reins of mind. The intellect should be vigilant, lest the horses overpower the mind and go astray.
The path is indeed difficult, but as Swami Brahmananda said, find joy in the struggle. The love of mother or father of any earthly relation is nothing as compared to the love of the Lord. A drop of his love is ocean of bliss, but we are unable to give up our petty joys for the sake of the great joy of God. Everyone wants only peace and blessings, but all the time we go in the opposite direction, that is like musk deer away from the infinite treasure of peace which is within ourselves. As a result, we get more and more bound and go on amassing misery. On the contrary, the great ones used to forget their bodily pains for going to the higher planes. Full stop. There, our little personalities with little enjoyments do not exist. From that high plane, you can look upon things spiritually with a dispassion and detachment. So one can be worse than an animal or greater than the gods. It depends upon the direction we choose. Peace and bliss. We all want peace, but what is real peace? Is it peace of a sleeping man or stock? That is the peace of ignorance and inertia. Real peace is full of consciousness and bliss. Desires and presence of God do not coexist. For real peace, we shall have to burn our desires, and only then Kali will manifest in our hearts. The highest state of peace is moksha. But till you reach that state, what should you do? Lord is the source of infinite peace and bliss. By thinking of him, we get a little of his peace and bliss. Worshipping Sat Chitananda, we are lifted above our limited body mind consciousness. We should go on purifying our mind by japa and meditation. As you elevate your mind to higher and higher states, you attain more and more peace and bliss. The mind should never forget the truth that God is the only reality. A moment of joy and long hours of misery, that is the world. Joy of spiritual practice. Joy comes from expansion. Petty-mindedness brings misery. During worship, we are at peace with ourselves and others. It is worship that is the source of joy. The moment one becomes absorbed in contemplation, one experiences boundless joy. Greater joy will be found as we progress in practice. Our aim is to attain transcendental joy, Brahmananda, the joy of Brahman, which is only permanent joy. The degree of joy corresponds to the different states of consciousness and different states of vibrations or chakra. Hence, the attitude of the mind is always to be watched. We must remove the tendencies that bring dejection and misery by following the advice of Patanjali, namely counteracting those bad tendencies with good ones. The joy within. A stage comes when the soul does not feel content with the external toys and yearns for self-realization. This is the hunger of the soul. In spite of all material comforts, there is something wanting, a discontent. Shandogya Upanishad narrates how Narada, even after studying many shastras, mantras, was not yet happy. He went to the Guru for self-knowledge. We are all pleasure seekers, but do not seek joy at the correct place. Self is the source of all joy, and we should look for him within ourselves. What is needed is sincerity and eagerness, repetition of the divine name, dwelling on the meaning, and imagining the living picture of the deity leads to the awakening of the spirit within ourselves. Self is the source of all joy. Pure air and light are at the top, that is on the roof. Lower in the staircase, it is only hotter and darker.
once tasted the joy of pure air and light, we should always remember of the rule. If sleep is unconscious bliss, meditation is a conscious effort to experience that bliss. When we fall asleep, we do not care for anyone. One should have the same attitude while sitting for meditation. We should raise the anchor, cut off the worldly bonds, at least for the time being. Spiritual progress. For spiritual progress, more than anything else, one should have the blessing, cooperation of one's own mind. There are many deep-rooted samskaras created by wrong thinking and action, which have to be uprooted through right thinking and action. What is progress? We become more and more selfless in our dealings with others. We feel an inner joy and peace. Compare your past mental state with the present. How many times you now think of God? How much time is now spent in contemplation of Him? Find out what thoughts come when falling asleep and when waking up. These are the indications of progress. By mental purity, it is meant that worldly thoughts will not unduly disturb the mind. Progress in the mental field is both vertical and horizontal. The mind is elevated and it also expands. The outlook widens as we do japa and meditation regularly. As we progress, our identification with body, mind, and ego drops. Only the Atma shines brightly. This will lead us to immortality. Through moral practice, we come to know purity. Through spiritual practice, purity becomes established in us. That gives us strength and a state of fearlessness. However, realization is possible only through the grace of God. Just as age-long darkness in a room is removed as soon as a lamp is lit, so all the impurities are removed when we get the grace of God. And unless the heart is purified, God's grace does not reveal itself. So our effort should be steady and unfailing. As long as the needle is covered with rust, it cannot be attracted by the magnet. The breeze is blowing, unfurl the sails. The Guru gives instructions to the devotee and guide him through and through till the goal is reached. When the devotee reaches the goal and meets the reality, all his doubts vanish. The devotee should not stop at the intermediate stages of various spiritual experiences during the journey till he reaches the ultimate stage. The Guru leads the discipline, the Guru leads the disciple till that state is reached. The mind is the greatest Guru. Nothing can be done without the help of the mind. The mind is to be purified by the practice of japa and meditation. By such practice, our body will become pure, strong, and healthy. There will be mental strength and our hearts expand. When this happens, we come more and more in touch with the inner reality. Truth will unfold itself from within. A strange, inexpressible joy is experienced, which cannot be described to anyone else. Why the sadhakas feel unhappy? They are unhappy because they are neither engrossed in the word nor they are jnanis. Marks of spiritual progress. The mark of progress is whether our selfishness and egoism are going down. If our body has become more harmonious and mind purer, we are progressing. Once you are established in japa and meditation, there is no more hankering even for solitude. Another test for progress is whether our attitude towards others has changed and whether we have gained universal love for all. A person with a pure mind cannot find fault with anybody. Such purity is the test of progress. One who feels the presence of the Lord within and without is truly an Advaitist. He cannot find fault with others. Some blame God if they are unhappy, but they are themselves blameworthy. It is not use rowing without removing the anchor. It is absolutely essential to remove it at least during meditation. We should cultivate the consciousness of no attachment to the worldly things, even to the body. We are sparks of the infinite spirit
By following the instructions of Guru, we make this idea our own. We have to think that the light of the Atma has taken the form of the deity. By regular practice, our understanding becomes clearer and clearer. An adult crosses the road easily because his vision is now clear, whereas as a child, he had to take help. Meditation on a divine form is suited best for most people, but gradually the aspirant is led to the contemplation of the formless. The highest meditation is on the all-pervading light of consciousness. The chosen deity has arisen from that infinite light. It should ultimately merge in that. To a question, how does it culminate? Is the eminence of God realized in all, or does everything disappear completely? Swamiji answered, both happen. But one should practice than discussing these matters idly. There should be inner transformation and growth. Otherwise, it is all hypocrisy. Out of those who take to reason, only 5% succeed. Many take to reason, but do not persevere. Mental power and bodily strength are equally essential to withstand the struggles and tensions during sadhana period. We should pray to God to guide our understanding and enlighten our consciousness. Dyo yona parchododya. Sadhana leads from the finite to the infinite. It is impossible to have an idea of the infinite without a conception of the infinite. The power of mind is to be increased to sadhana to have a clear conception of the infinite and other spiritual truths. When we think of deity seated in the heart, it is not in purely physical terms. The deity is manifested in our inner consciousness. Two types of samadhi. Samadhi is of two kinds, Svikalpa and Nirvikalpa. Initially, what Sri Ramakrishna experienced, darshan of Divine Mother, was Svikalpa Samadhi. A trace of the ego remains in that state. In Nirvikalpa Samadhi, all consciousness of the individuality and form of the deity merge in the divine consciousness. This is a state of perfect union with God, and it is the highest state of consciousness where both gross and subtle bodies merge with infinite consciousness. Brahman has manifested itself as sound, Sabda Brahman, and that aspect of God is revealed when we tune ourselves with the Sabda Brahman, and thus we get the sound. Pranama. ठीक है, ओके। अच्छा, तो सबसे पहले ये सतीश का ही प्रश्न ले लें। सतीश, महाराज वो सतीश, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिसमें जो लिखा है कि we should do japa with intelligently, knowingly, dwelling on its meaning. इसको elaborate कीजिए प्लीज। ये intelligently, knowingly, consciously क्या होता है? हाँ, वो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक माँ एक बच्चे को कहती है कि बेटा रोज तू राम जी का नाम लिया कर। बच्चा कहता है ठीक है, और बच्चा रोज राम जी का नाम लेता है। माँ फिर बाद में बोलती है कि बेटा बैठ के नाम लिया कर। पहले तो घूमता रहता था और नाम लेता था, अब वो बैठ के, अच्छा मैं बैठ के लेता हूँ। बैठ गया, लेकिन वो इधर उधर देखता जा रहा है और राम जी का नाम ले रहा है। तो राम जी का नाम तो ले रहा है। फिर माँ कहती है कि ये माला ले ले, 108 बार लेना करना। तो माला लेके गिनता जाता है, राम राम बोलता जाता है, 108 बार उसने कर लिया। माँ मैंने 108 बार राम जी का नाम कर लिया। ये इंटेलिजेंटली नहीं हुआ, उसका मन इधर उधर भग रहा है। वो राम जी क्या है वो भी नहीं समझता है। राम जी कौन है वो फोटो दिखा दिया उसने, ये राम जी।
तो इसमें इंटेलिजेंटली भी नहीं है, कॉन्शियसली भी नहीं है, कंसंट्रेशन के द्वारा भी नहीं है। अगर अब आपको ये समझा दिया जाए कि देखिए एकांत में बैठकर शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है और राम जी का नाम जो है उसका अर्थ का चिंतन करना है, यानी राम का नाम लेंगे तब राम जी का रूप या राम सच्चिदानंद है वो ध्यान आना चाहिए, या राम कृष्ण हो तो वो राम कृष्ण जो है वो तो अवतार है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो ध्यान मन में आना चाहिए और मन कंटिन्यूअसली उसमें लगा रहना चाहिए। इसको कहते हैं, पतंजलि कहते हैं तद जपः तद अर्थ भावनम, जप कीजिए और उसके अर्थ का चिंतन कीजिए। याद रखिए, उसका अर्थ का चिंतन किए बिना जो जप है वो कॉन्शियस जप नहीं होता, वो इधर उधर मन भागता रहता है। और ठाकुर तो जप के बारे में और भी कहते हैं, जप करो निर्जन में निःशब्दे एक मन से अनुराग पूर्वक, निर्जन में बैठकर करो, एक मन से करो, इधर से डिस्टर्बेंस नहीं आवे, एक मन से। यानी क्या कि तुम्हारे इमोशंस एक ओर जा रहे हैं, तुम्हारी कल्पना दूसरी ओर जा रही है, ये मन के जो विभिन्न फंक्शंस हैं वो सब के सब भगवान की ओर कॉन्सेंट्रेटेड हो जा रहे हैं। और शब्द का अर्थ निर्जन है, निःशब्द, एक मन से। और ठाकुर एक और बात कहते हैं, अनुराग पूर्वक, भगवान का नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, अनुराग नहीं है। और ऐसे भी संत हैं, जैसे वो तोते की बात है, तो तोता जो है वो इतना नाम जप कर रहा है कि पानी नहीं पी पा रहा है, इतना अनुराग है उसको। तो ये सारी बातें कॉन्शियसली, इंटेलिजेंटली ये सब उसके अंदर आ जाती है। तो वो वही बात उन्होंने यतीश्वरानंद जी ने कहा है कि जब राम 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 करना ये एक होता है, और उसको अनुराग पूर्वक एकाग्रता के साथ में उसका अर्थ समझ के करना, ये होगा इंटेलिजेंटली, कॉन्शियसली, विद कॉन्सेंट्रेशन। जी महाराज, ठीक है, इज इट क्लियर? अनुराग जो है विराग से आता है। हाँ, अनुराग जो है विराग से आता है, वैराग्य से आता है। अनुराग नहीं, अनुराग दूसरी चीज है। अनुराग और विराग क्यों बुला रहे हो? अनुराग और विराग को नहीं बुला। और वैराग्य है संसार से अनासक्ति। तो वैराग्य जब होता है तो इसका मतलब नहीं है कि भगवान में अनुराग होगा ही। बहुत से लोग होते हैं बहुत वैराग्य है संसार से, लेकिन भगवान में अनुराग नहीं है। तो दोनों को जोड़ो मत। राइट, ये तुम्हारे क्वेश्चन के बाहर की बात हो जाती। ठीक है, प्रणाम। अच्छा, अब आप चलिए सुबीर। हाँ प्रणाम। हाँ प्रणाम महाराज जी। क्वेश्चन पूछ। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज, we think we have reached a stage in our spiritual life where we will not be shaken by minor challenging episodes, but how to prepare ourselves mentally to face a major challenging episode in the future, because therein lies the test of our spiritual progress. ऐसा है कि कोई ये क्वेश्चंस का कोई डायरेक्ट आंसर इन द सेंस कि भाई वहां आगे क्या होने वाला है उसकी मैं तैयारी करूं, तो मुझे पता चलना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या मेरे को टेम्पटेशन मिलेंगे, कौन सी कठिनाई आएगी, बुढ़ापा आएगा, ये होगा वो होगा, ये तो मैं जानता नहीं। जी, मेंटल टफनेस कैसे आए? नहीं, सुनो, तो इसके लिए ये जनरल मीन्स है। ऑलरेडी देयर आर जनरल मीन्स इन स्पिरिचुअल लाइफ, और इसी को हम बोलते हैं तपस्या। याद रखिए, व्हाट यू मीन बाय, यानी एक अपने आप किसी स्पेसिफिक चीज के लिए हम तपस्या नहीं करते, वो नहीं करते। अगर हम सिंसियरली आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करें तो आने वाली आध्यात्मिक बाधाओं के लिए हम तैयार हो जाते हैं। लेकिन जी। फिर भी उसके बावजूद भी, जैसा तुमने प्रश्न किया है,
सभी संतों ने हमको कुछ निर्देश दिए हैं, और वो है फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे कहते हैं शारीरिक और मानसिक तप। शारीरिक तप और मानसिक तप। जी तप क्या है? द्वंद्व सहन करना, तितिक्षा जिसे हम कहते हैं। जी इसके अतिरिक्त फास्टिंग, रात जी को जागृत रहना, जी इस प्रकार के जो तप हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और शारीरिक और मानसिक रूप से हमको प्रिपेयर करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे मिलिट्री में है तो सुबह सुबह ड्रिल कराते हैं, जम के ड्रिल कराते हैं, दौड़ाते हैं, उनको तैयार जी करते हैं कि भाई कभी युद्ध होगा तो तुमको युद्ध के लिए अच्छे सोल्जर बनना है। तो जी इसलिए शारीरिक और मानसिक तपस्या ये हमें आने वाली डिफिकल्टीज के लिए तैयार करती है। तो इसके जी लिए शारीरिक डिफिकल्टी हम समझते हैं, खाना कम खाना, उपवास करना, रात को जागरण करना, खड़े होना, कुछ लोग तो एक पैर पर खड़े रहते हैं घंटे 2 घंटे, इस प्रकार के बहुत सारे शारीरिक तपस्या हैं। और जी दूसरी है मानसिक, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट। जी जी क्रिश्चियंस जो है वो तो एक और भी है, पहले जमाने में तो क्रिश्चियन क्रूसेड्स पे जाया करते थे। जी जी वो लोग जिन्हें मुस्लिम के साथ युद्ध होते थे तो उसमें क्रूसेड में जाते थे, अपने को बलिदान करने के लिए तैयार रहते थे, तो मेंटली उसके लिए प्रिपेयर करते थे। लेकिन यहाँ हमारे को क्या करना है कि हमें मेंटल तपस्या करना है। तो मेंटल तपस्या क्या है? स्वाध्याय, जप, कंटिन्यूअसली भगवान का चिंतन करना। और इसके अतिरिक्त क्रिश्चियन लिटरेचर में इसके बारे में बहुत अधिक कहा है, यानी अपने जो दुख और दुख निवृत्ति, मेरे जो वो है आर्टिकल्स हैं, चैप्टर्स हैं, उसके बाद में टेक्निकल ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इत्यादि में भी है। तो उसमें ये कहते हैं कि तपस्या के अलावा और भी मेंटल सीकिंग के लिए सेंट जॉन ऑफ क्रॉस कहते हैं, ऑलवेज सीक फॉर प्रेफरेंस, नॉट द इजीएस्ट बट द हार्डेस्ट। जी जी ये जी तो बिल्कुल। जानने वाले ने कि हाँ आगे हाँ समय क्या हार्ड सिचुएशन आएगी, जी लेकिन जी जी जब आपको प्रेफरेंस है तो गद्दे के पर सोने के बदले एक चटाई हाँ पर हाँ सो, हाँ वेयर नॉट द मोस्ट चार्मिंग बट द मोस्ट बोरिंग। ऐसी जी चीज जी जो जी हमको अच्छी लगे, ब्यूटीफुल लगे, वो नहीं, जो हमको हाँ अच्छी हाँ नहीं लगे। नॉट व्हाट pleases but what repels, not what consoles but rather afflicts, not what राइट saves trouble but what gives us trouble, not the जी most but the least, etc. बदली। तो परफेक्ट ऑलवेज महाराज। सीक फॉर प्रेफरेंस दैट विच इज अनप्लेजेंट। संसार जी के लोग सदा प्लेजेंट को सीख करते हैं, अनप्लेजेंट को सीख करने का कोशिश करते हैं। अब इसमें कई प्रकार के हो सकते हैं। खाना है तो खाना मिला के खा लिया, मीठा खट्टा सब एक साथ मिला के खा लिया, साधु लोग तो खाते ही हैं। तो जी इसलिए कि अब अगर आपको 5 साल 10 साल बाद ऐसी सिचुएशन में पड़े कि जहाँ पे आपको खाना अच्छा नहीं मिले, अरे भाई मैं तो इससे बड़े आदी हूँ, आई एम यूज्ड यूज्ड टू। सो इट इज नॉट इजी टू, वो क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन आने वाले, ये कहना मुश्किल है। जी 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 इन जनरल हम तपस्या का जीवन व्यतीत करें, शारीरिक और मानसिक। जी महाराज बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया महाराज। ठीक। महाराज सेकंड क्वेश्चन इज doubt Sanshaya is spoken of as an obstacle in the path of our yoga. Yes. We may not have the doubt of existence of God. We may not have the doubt of the path of yoga that it leads to God, but we may have doubt in our own ability to reach the goal. How to overcome that? वो जैसे 3 प्रकार के डाउट होते हैं, साध्य संबंधी, साधन संबंधी और साधक संबंधी। Doubt about the goal, that is not there. Doubt about the means are not there. Doubt about the person, myself, I am not able to do. I don't know whether I will be able to do it or not. तो इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल है, रीड स्वामी विवेकानंद जी। हम लोग तो बचपन में यही कर कर के तो बड़े हो गए।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन गो अप टू द माउंट एवरेस्ट, यू कैन रियलाइज गॉड, कहते हैं ना स्वामी विवेकानंद। जी जी बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद शुरू से आखिर तक बस इसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कहते हैं। एंड देन होल्ड ऑन टू सम पर्टिकुलर थिंग, कुछ एक काम करके चालू करो, उसको पकड़े रहो, देखेंगे कि आपको लग रहा था कि नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हम तो कर पा रहे हैं। और वो चींटी का दृष्टांत मैं पहले भी देता था कि चींटी है वो मुंह में दाना लेके और दीवार पर चढ़ रही है, बीच में ऊपर चढ़ी और गिर गई, फिर उठी, वो चींटी ने उस दाने को पकड़ा ही हुआ है और वो ऊपर चढ़ रही, अगली बार और ऊंचा चली गई, उसके बाद फिर गिर गई, फिर वो छोड़ती नहीं जी। द पॉइंट इज दिस दैट ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होना ये बहुत बड़ी बात, यानी वो ये होना बहुत बड़ी बात है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद को बार बार पढ़िए, ये बेसिक ट्रेट ऑफ कैरेक्टर है, बार बार इसको पढ़िए, आप देखेंगे ये अपने जीवन में आ जाएगा। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं वेस्टर्न पीपल, भारत में ये है अगर हम कर नहीं सकेंगे, हम कुछ नहीं है, दुर्बल है, और फॉरेन में लोग को ऐसा कुछ नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति समझता है कि मैं जो चाहूं उसे कर सकता हूँ। ये बेसिक ट्रेट है सबके दिमाग के अंदर, मन के अंदर, राइट। बचपन से डाल दिया जाता है कि यू आर ग्रेट, यू विल बिकम ग्रेट। जी महाराज, ये अपने लिए सेल्फ डाउट आता ही नहीं है। जी जी जी, डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मैन। हाँ हाँ महाराज जी, आई रिमेम्बर। हाँ, मेरा ये सजेशन है कि इफ यू हैव गॉट दिस थिंग, रीड स्वामी विवेकानंद अगेन। हाँ हाँ, दैट इज द बेस्ट आंसर। हाँ, like he says, difference between man and man is in his faith and self-confidence. Don't worry about that. That is not how you are not the person to decide whether you are superior or someone else is superior. No, I was quoting Swamiji Maharaj ji. हाँ, वो कहते हैं ना difference between one man and another man. वो अपने कहीं उन्होंने कहा है ना, the difference between man and man is in his self-confidence, in his faith, in his faith. That's what I meant. Yes, that's right. Ji Maharaj. Now the third question, Maharaj ji. What is meant by unfurling sails to catch the breeze of God's grace? वो भगवत कृपा, पुरुषार्थ करना, सेल्फ एफर्ट। हाँ बस, दैट्स ऑल। हाँ, वो जो आप तो समझते हो गंगा के ऊपर है, पाल नहीं तोड़ो, पाल नहीं खींचोगे तो हवा नहीं लगेगी। तो पाल खींचने का मतलब क्या है कि भगवान की हवा, कृपा, तो हवा तो बह रही है, उसको चाहिए पकड़ना। तो अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो भगवत कृपा आ जाएगी। जी महाराज, दैट इज द सिंपल थिंग, दैट इज ऑल। हाँ, दैट्स व्हाट आई थॉट। आप देखेंगे कि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं तो पहले से ज्यादा शक्ति आ गई है आप में। जी जी। अरे हम तो मैं सोच ही नहीं रहे थे कि हम इतना कर सकेंगे, हम तो कर पा रहे हैं। क्यों? मानो भगवत कृपा आ गई, यानी हवा तो चल रही है, यानी देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू, बट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। जितनी आप में शक्ति होगी उतनी मदद आपको आगे से बाहर से मिल जाएगी। जी महाराज, ठीक है महाराज। एक लास्ट यहाँ तक कहता हूँ, यतीश्वरानंद जी ने कहा है कि गॉड्स ग्रेस कम्स इन द फॉर्म ऑफ पुरुषार्थ। अगर कोई व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ कर रहा है, बहुत साधना में लगा रहा है, तो समझ लो कि उस पर भगवान की कृपा हुई है। जी। तो कृपा का मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे हाथ में लड्डू आ गया, ऐसा नहीं है। सेल्फ एफर्ट, उसमें ताकत आ गई है कि वो लड्डू प्राप्त कर सकता, पहले नहीं थी उसमें ताकत। जी। ओके महाराज, एक लास्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट इन माय लिस्ट, बट आई थॉट आइड आस्क यू। आजकल ये अफगानिस्तान में ये तालिबान का बहुत चल रहा है, तो व्हाट आई मेंट टू से इज, जैसे हम लोग न्यूज भी नहीं देखते इतना, ना कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन कान में तो फिर भी लोगों से आती है। तो हाउ शुड ए डिवोटी react to these things, because there are barbarous acts taking place, but how should we behave towards such things happening? मैं भी तो तालिबान के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, पता चला कि हाँ कुछ हुआ है। जी जी। और जो न्यूज आएगी वो तो न्यूज़पेपर वाले जो रिपोर्टर देंगे ना। हाँ, लेकिन लोग भी बताएंगे ना, घर में लोग भी बताते रहते हैं ना, इसलिए एक्चुअल सिचुएशन वो लोग कहाँ से जानते हैं, सब बाहर से आती है ना। हाँ हाँ, वो तो परकुलेट होकर आती है।
जी। अब वो कैसे आपको, अब क्या करना है यहाँ के, आप तलवार लेके तैयार होगे, क्या करोगे? ये संसार में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। हाँ जी, मन को आघात पहुंचता है, इसलिए सोचता हूँ कि इसको कैसे डील करें। तो मन को आघात पहुंचा लेने के लिए तो आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है जी। आप सड़क पे चलते हुए देख लेंगे, ऐसे गरीब आदमी है जिनको देख के आघात होएगा। जी महाराज, सही बात। हाँ, वो तो दैट इज नॉट द पॉइंट। ठीक ठीक। आई मीन यू, इफ यू डू गो ऑन डूइंग इट, आपका मन बाहर ही रहेगा। प्रिंसिपल सीधी है, शिव ज्ञान से जीव सेवा, बस आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, सेवा भी करना है, भगवान की साधना करना है। और संसार की दृष्टि जरा ठीक है, संसार में ऐसा ही चलता रहेगा, याद रखो। जी, हमेशा इस तरह का चलता है। जी महाराज, दैट्स ऑल महाराज। डिस्पैरिटी हो ही जाएगी। जी महाराज। कुछ लोग जो हैं वो हिंसा को लेंगे, कुछ बिना हिंसा के लिए। जी। तो एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन, ये सारी की सारी चीजें समाज में हमेशा बनी रहेगी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लीव द वर्ल्ड फॉर द रेस्ट। टाइम बीइंग के लिए संसार को छोड़ दो, अपने टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। श्री रामकृष्ण खुद कहते हैं कि संसार कितना बड़ा है, क्या कितनी सेवा करोगे संसार की। थोड़ी हाथ में सामने आ गया, उसकी सेवा कर ली। लेकिन वो उधर वहां पे वहां क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, वो प्राइम मिनिस्टर को जानने तो बाबा, उसको क्या करना है क्या नहीं। जी महाराज जी, ठीक है महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, प्रणाम महाराज। हाँ, सपना, सपना हो। हाँ, बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन का तो हो गया। और सेकंड क्वेश्चन है, when we fall asleep we do not care for anyone. One should have the same attitude while sitting for meditation. Is this the ultimate stage? Because mind is alert during meditation but not in sleeping. You know, it is not the ultimate stage, it is a glimpse of ultimate stage. यानी वो आप अल्टीमेट स्टेज में अगर आप, अब सुनाई दे रहा है? यस 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 महाराज जी, जी महाराज। ऐसा है कि वो अल्टीमेट ग्लिम्स, अल्टीमेट स्टेज की झलक है। अगर नहीं आया, सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, बीच में क्या बोलते, आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, वो ध्यान में बैठेंगे तब मन जैसा ध्यान में डीप स्लीप में हो जाता है, इतना डीप हो जावे, लेकिन इफ यू आर कॉन्शियस, दैट मीन्स, तुम उसको हटा दो। हाँ, दैट मीन्स that it is a glimpse of the ultimate stage. समझे कि नहीं समझे? हाँ, I mean, there is a ultimate stage and this, try to get it. It is a glimpse, कुछ देर थोड़ी से आपको झलक मिल जाएगी आप, that's all. अच्छा, fully conscious, हाँ, fully conscious, but जस्ट ए स्लीप में और कुछ जानते नहीं है, उस प्रकार से। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ये कहते हैं समाधि क्या है, या भगवत दर्शन क्या है? इट इज लाइक स्लीपिंग कॉन्शियसली। और तुरानंद जी क्या करते थे, तुरानंद जी की लाइफ पढ़ो तो वो कहते थे, वो क्या करते थे कि वी ट्राई टू सी द स्लीप। सोते देखते थे, अपने आप को देखते थे सोते समय। बिल्कुल उड़ गई थी, उसके बाद सो नहीं पाते थे। So that is not the ideal, but your question is correct. That is the state. Try to do it. That's all. Okay. Try to get it as much as possible in that state. I was thinking that in sleeping we are not conscious. We are not alert during sleeping, but during meditation we are alert.
No, that's all right. But if you can bring a state like sleep during meditation with alertness, this is Okay. what your question is. Okay, Okay. that is itself a higher state. Okay. Okay. Now the Thank you. third the paragraph we will take up in the end. Okay, Yes, yes, Maharaj. Dilip bhai. दिलीप शाह अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस, पहला सवाल तो क्लियर हो गया। अच्छा, हाँ, नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्वचन तेल धारा? अनब्रोकन निर्वचन तेल धारा। हाँ, तेल धारा। पानी की एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी धारा, तेल की धारा बहाए तो समझे ना, ये तेल धारा समझ गए? हाँ, वो तो समझ गए, पर हाउ इट इज? तेल की धारा जी, और पाया तेल की धारा, कहीं पानी की धारा नहीं बोली, क्योंकि पानी अगर डालोगे तो ना टप 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 हो जाएगा जी, वो ब्रेक हो जाएगा पानी। तो तेल को एक बर्तन से दूसरे में डालोगे तो तेल टूटेगा नहीं, पूरी लाइन बनी रहेगी जी, बिना टूटे हुए। अवच्छिन्न यानी टूटना, निरवच्छिन्न बिना टूटे तेल की धारा बनी रहे। इसी प्रकार से हमारा ध्यान भगवान का होना चाहिए, वो तेल की धारा की तरह होना चाहिए। हमारा ध्यान जो होता है वो पानी की धारा की तरह हो जाता है, बार बार टूट जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? जी, आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हार्ट कॉन्शियसनेस? हमारे हृदय को आप समझते हो ना? अब हम कहें दिलीप भाई जी, को लोगों को बड़ा दुख हो रहा है, ओहो मेरे हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा है, हमने हृदय के ऊपर हाथ रख लिया ना, ये हार्ट कॉन्शियस। हम हार्ट यानी हमारी भावनाएं, अंदर की भावनाएं। जी, तो ध्यान करते भी कहते हैं ना कि हृदय में ध्यान करो, तो यहाँ तो वो मांस का हृदय है, वो नहीं, यहाँ बोलते हैं कि कमल की कल्पना करो और उसमें अपने इष्ट का ध्यान करो। ये हृदय यानी हमारी चेतना का केंद्र, जहाँ पर हमें भावनाएं अनुभव होती हैं, जहाँ पर हम एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सारी चेतना, कॉन्शियसनेस, हमारे विचार, इनका जो केंद्र है उसको हम हार्ट कॉन्शियसनेस। ठीक है Maharaj, then what is the difference between mind consciousness and the heart consciousness? Because heart consciousness also realized through mind. That's all right, that's true. माइंड कॉन्शियसनेस ही है, लेकिन जहां जो हमें सबसे अधिक है उसको हमने बोला हार्ट। अब जैसे एक माँ है, माँ भी हृदय से मन से सोचती है, लेकिन उसका चेतना का केंद्र कहाँ है? उसका बच्चा है जी, तो क्या है कि वो चाइल्ड कॉन्शियस है। तो कॉन्शियसनेस तो है तो मन से ही होती है, सब जगह मन ही होता है। जी, जी, सब मन से होता रहता है, लेकिन जहां पर हमको भावनाएं या मन सबसे अधिक एकाग्र हो जाता है उसको हम हार्ट कॉन्शियसनेस। जी, जी महाराज, बराबर। Now next question is what is the difference between I and self? Because देखो ये लगता है कि व्यक्ति जैसा डिस्क्राइब करेगा, इस पर्टिकुलर एक सेंटेंस आपने पढ़ा उसमें होगा, तो जैसा होगा उसके ऊपर निर्भर। महाराज, ये मैं पढ़ रहा हूँ। जी, we start with external objects and move towards the inner reality. The highest state is seeing the self in everything and everything in the self. Yes, ठीक है, आगे चलो। हाँ, that is a Gita, and in that state where the delusion, where is sorrow, the journey commencing with the image worship will lead to this supreme truth. What was the experience of Sri Ramakrishna?
the shrine, the puja vessels, everything लेकिन has मी एंड सेल्फ, मी की बात है, सेल्फ तो समझ में आ गया। हाँ, सेल्फ यानी जो है चैतन्य परमात्मा सर्वत्र विद्यमान, जी हमारी आत्मा, सोल जो बोलते हैं ना, वो तो हो गया सेल्फ। जी और ये देह अलग है, देह तो मैं जानता हूँ, मेरी इंद्रिया में जानता हूँ, मेरा मन में जानता हूँ। तो ये जितना सब जानना है ये अहंकार से होता है। ये अहंकार जो है वो है मी, मैं जब अपने देह को अपना मैं मानता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यानी अहंकार देख रहा है। राइट, यानी जिसको हम जीव कहते हैं, मैं लिमिटेड आदमी हूँ, मैं ब्रह्मेशानंद हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, और आप हैं दिलीप भाई, आप सुनते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो ये जितना है ये सब मैं है। लेकिन इसके पीछे एक चैतन्य सत्ता है, इसको बोलते हैं सेल्फ। यानी उसको भी समझाया जा सकता है कि ये तो मैं कहा, तो ये सब चीजें तो अलग तो हो गई, देह भी अलग हो गई, मन भी अलग हो गया, बुद्धि भी अलग हो गई, यहाँ तक कि मैं अहंकार को भी अलग कर रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद एक सेल्फ बचा रहता है, आत्मा बनते बची रहती है। जो आत्मा में छोटा था, एक 5 वर्ष का बच्चा था, और अभी 50 वर्ष का या 80 वर्ष का हुआ, तब भी वो मैं बना हुआ है। लेकिन देह बदल गई, मन बदल गया, ये सब बदल गया। तो एक चीज है जो सब कुछ बदलती जाती है, उसको मैंने कहा मैं, मी। हाँ। और जो नहीं बदलता है वो हो गया सेल्फ। ठीक है जी। और सेल्फ क्या चीज है? आत्मा। हाँ, अब आप उसको आत्मा कहो, अंग्रेजी में उसको सेल्फ कर देते हैं। ओके जी। Now next, what is one beyond all thoughts? It is vacuum or hollow, or it is like a black hole? उसने एक चीज और आपने लिखी नहीं, आकाश बोलो ना। हाँ, यस, आकाश जैसा। जी जी जी। तो अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्लैक होल और वो सब नहीं, आकाश जैसा परमात्मा सर्वव्यापी है। तो आकाश जो मेरे टेबल के अंदर भी है, मेरे बिस्तर में भी है, मेरे अंदर बाहर सर्वत्र आकाश है। उसी प्रकार से ये चैतन्य आत्मा ये सर्वत्र विद्यमान। जी जी, ठीक है, राइट, वेरी राइट, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the example of the child is under the impression that his mother is omnipotent and feels happy, but after some time he sees his father scolding the mother, and then the father becomes omnipotent. When he grows still older, he ceases to have any regard for them by seeing the hypocrisy. That iska meaning kya Maharaj? But ultimately we do not find security in God. Ultimately we find security in God. That is because आपका प्रश्न ये है, हाँ, मेरा प्रश्न ये आपका है, प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि हम समय समय पे हमारी सिक्योरिटी बदलती जाती है। पहले बच्चा माँ में सिक्योरिटी देखता है, फिर पिता में देखता है, फिर आगे जाता है तो सोसाइटी में सिक्योरिटी देखता है। तो व्हाट इज देयर? अल्टीमेटली वी कैन हैव अ सिक्योरिटी इन गॉड, but ultimately we do not find security in God also. That is why we come back on the earthly things later on. ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। हमारा मन भगवान को तो मिला है नहीं, सच पूछा जाए। जब भगवान मिलेंगे तब उनमें सिक्योरिटी होगी। जब भगवान मिले ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो उसमें भगवान में विश्वास करना पड़ता है, बस, और कुछ नहीं। लेकिन वो भी नहीं होता। एक वो कहानी है ना, एक आदमी की वो कुछ प्रॉब्लम हुई थी उसके घर में, तो उसने क्या किया, हनुमान जी मेरी रक्षा करो, हनुमान जी रक्षा करो। तो हनुमान जी से रक्षा की नहीं, तूफान आ ही रहा था, तूफान आ रही, उन्होंने वो जो झोपड़ी थी वो कड़कड़ करने लगी कि हनुमान जी के तो
भक्त थे, वो राम जी के भक्त थे, राम जी रक्षा करो, राम जी रक्षा करो। राम जी रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो राम जी जो है वो शिव जी की उपासना करते हैं। अरे शिव जी रक्षा करो, शिव जी रक्षा करो, ये शिव जी की झोपड़ी है, शिव जी की झोपड़ी है, ऐसा ऐसा है। तो भी झोपड़ी टूटने लगी तो कहते हैं धत सारे झोपड़ी की छोड़ दिया, सब धत सारे हो गए, सब जो भगवान के सब लगते, राम चले गए, हनुमान चले गए, शिव जी चले गए, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। तो बाबा ये तो विश्वास के ऊपर है, कोई होता नहीं है, ये भगवान को कोई प्राप्त होता नहीं है। जब तक प्राप्त नहीं हो, जितना पूर्ण विश्वास नहीं हो, तब तक अनसिक्योरिटी बनी रहेगी। और ऐसे भी लोग हैं जो खाने को कुछ भी नहीं मिले तो भी भगवान की इच्छा, मस्त है जी। अंतिम समय में भी मस्त है। कोई मारने काटने के लिए आवे, सूली पर चढ़ जाते हैं भगवान के लिए। जी। तो ये इतना पक्का विश्वास, तो ये पक्का विश्वास होने पर ही ये ठीक होता है, नहीं तो भगवान भगवान कुछ नहीं। जी। ये तुम्हारा प्रश्न ठीक है। ये संसार में तो महाराज ने यतीश्वर ने इसीलिए कहा, अल्टीमेटली आखिरी में विचार करके हम देखते हैं कि भगवान के सिवा और कुछ नहीं है, और भगवान में अगर नहीं हो तो बड़ी मुश्किल। तो कहीं ना कहीं विश्वास होना चाहिए। भगवान के दर्शन नहीं होने वाले हैं, दर्शन होके भगवान को आप प्राप्त करोगे ऐसा नहीं है। वो आपको विश्वास के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा ही भगवान में स्वीकृति खोजनी पड़ेगी। ठीक है, राइट, बहुत सही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज morality? How can we see its glimpses? Morality? What is morality and how can we see its glimpses? जी, ये see it? जी, ये सवाल है। A spiritual seeker is a psychologist. He studies his mind. By spiritual practice, morality will be established in us. Sometimes you get a glimpses of the reality and the memory will ever remain. तो हम कैसे ये देख सकते हैं morality के glimpses? नहीं, ऐसा ही उन्होंने कहा है कि अगर स्पिरिचुअलिटी यानी भगवान का भजन मन एकाग्र करेंगे, मन को संसार से हटाकर स्पिरिचुअल बनने का, आध्यात्मिक बनने का प्रयत्न करेंगे, तो हमारे जीवन में मोरालिटी आएगी, यानी नैतिक आदर्श आएंगे। मतलब ये है कि तुमको ये लगेगा कि अरे भाई मेरे को भगवान को प्राप्त करना है तो सत्य बोलना चाहिए, मुझे किसी की चीज को चोरी नहीं करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा भगवान में भजन कम हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना भगवान का भजन नहीं हो सकता। तो ये मोरालिटी अपने आप आ गई जब हम भगवान का भजन करने लग गए। तो ये कहते हैं कि इफ यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, वो मोरालिटी 5 है, वही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये वही है जी। और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं बाद में, लेकिन मुख्य मोरालिटी ये है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ लीड करें तो ये हो जाए। ठीक है। How to identify ourselves with the reality? By meditation. भगवान का भजन करो। भगवान यह है, ये अच्छी तरह समझ लो। भगवान यह नहीं, सीमित भगवान नहीं है, एक चतुर्भुज रूप वाले या बंसी वाले भगवान नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण जो है वो सर्वव्यापी भगवान है। तो रियलिटी का अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे और भगवान को रियलिटी समझेंगे, सर्वव्यापी समझेंगे, तो हम सर्वत्र चिंतन करना है, केवल ध्यान में बैठ के करना। और बाद में जब ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे जो क्लार्क आएगा या प्यून आएगा तो उसमें भी भगवान को देखना है। अब इस तरह से हम भगवान के साथ एक हो सकते हैं जी। पर यहाँ पे एक सवाल है, identifying ourselves with the reality. How can we identify ourselves with the reality of God? वो ऐसा है कि जैसे भगवान को दूर समझते हैं ना, पहले दूर समझते हैं, उसके बाद भगवान को अपना निकट समझते हैं। भगवान को अपनी माँ समझते हैं तो बहुत निकट आ गए तो। हाँ। और उसके बाद में
जब भगवान माँ की गोद में चले गए तो और भी निकट आ गए। और पति पत्नी क्या कहते हैं? पति पत्नी कहते हैं कि तू जो है वो मैं ही हूँ, मैं और तू अलग नहीं है। कहते हैं कि नहीं है? जी कितना पति पत्नी का तो इंटीमेट रिलेशनशिप होता है ना। जी पति पत्नी कहते हैं कि तू और मैं एक ही हैं। इसलिए आइडेंटिफिकेशन इस प्रकार धीरे धीरे भगवान के साथ में प्रेम होने से आइडेंटिफिकेशन होता है। उसके बाद एक स्टेट में आता है तू और मैं एक ही हैं। जी गोपियां जो हैं वो शिव अपने को कृष्ण ही समझने लग जाती, यस इतना इंटीमेट उनका रिलेशन। जी जी ठीक है जी महाराज जी। नेक्स्ट अच्छा। क्वेश्चन, ए पर्सन हु हैज अटेंडेड ब्रह्मन will not remain in the blissful consciousness of God at all times. As Swami Brahmananji used to pass days and nights in the blissful consciousness of God, is it for whole life or for some time and then come back to the reality on the earth? क्या क्या बोला है कि उसे पहले क्या बोला है? सबसे पहले हाँ, a person who has attended the Brahman will not remain in the blissful consciousness of God at all time. Because Swami Brahmananji used to pass days and nights in the blissful consciousness of God. Is it for the whole life or for some time and then come back on the reality of earth? ऐसा है कि ब्रह्मानंद जी जो है ना जी, वो तो और सारे समय वो सिचुएशन में रहा करते थे। अब जब सो जाते हैं तब तो हट जाता है ना जी। लेकिन समझ लो 90% सब समय, मान लो सब समय भगवान का चिंतन होता रहा है, सब समय भगवान के साथ आइडेंटिफाई रहते हैं। हाँ, तो ये ब्रह्मानंद जी का आदर्श है और जितने साधक हैं उनको करना है। हमारा ब्रह्मेशानंद का भी नहीं होता, कभी होता है ध्यान के समय अच्छा हो जाता है, लेकिन जब ध्यान के बाद में यहाँ पर क्लास में आते हैं तो वो भाव जो है वो टूट जाता है। अगर हम खाना खाने बैठते हैं तो थोड़ा भाव टूट जाता है, लेक्चर देते हैं तो ये भाव टूट जाता है, आप ऑफिस में जाएंगे तो थोड़ा भाव टूट जाएगा। ये साधना के द्वारा हमें कंटिन्यूस बना रखना है। ब्रह्मानंद जी में ये कंटिन्यूस बना रहता था। जी महाराज। ठीक है जी महाराज। यस, नेक्स्ट, हाउ can by bhakti we will not get immense happiness for all time, as it is written, it is possible only by deep meditation and samadhi. In this article it is written. क्या लिखा है? यह आर्टिकल में लिखा है, our aim is to attain transcendental joy termed Brahmananda, the joy of Brahman. It is possible to attain it by deep meditation and samadhi. So my question is, can it not be attained by bhakti? Bhakti also it can be attained. वहाँ नहीं लिखा है लेकिन it can be attained by bhakti also. Yes, that's right. लेकिन ये भक्ति ऐसी छोटी छोटी भक्ति नहीं है। गोपी की भक्ति। जरा से आरती घुमा दिया और अशर प्रसाद ला लिया, चरणामृत ले लिया, ऐसा नहीं। जी जी। भक्ति यानी तो अपने गोपियों की भक्ति, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति, जो अपना सर्वस्व त्याग दिया, जी, ऐसी भक्ति से प्राप्त होता, अवश्य प्राप्त। जी जी, बराबर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इन मंत्र जप कैन वी ड्वेल ऑन द मीनिंग एंड imagining the living picture of the deity leads to the awakening of the spirit? महाराज, ये पूरा समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम ये अटेंड कर सकते हैं। मैं आप नहीं तो जब करने का उद्देश्य ये है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है? महाराज नहीं, जप करने का उद्देश्य तो ये है, यदि हम राम का जप करते हैं तो हम राम 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 कर रहे हैं, पर उस समय हाउ कैन वी डू दैट? वी शुड ड्वेल इन दैट द मीनिंग ऑफ द राम एंड इमेजिनिंग हिज पिक्चर and the deity leads. How can it be possible when we talk? अरे बिना उसके जप करने का लाभ क्या है? अभी तो पहले ही शुरू में हमें वही तो बात किया, प्रश्न क्वेश्चन। जप करना है, इंटेलिजेंटली करना है, कॉन्शियसली करना है, यह सोचना है कि इष्ट हमारे सामने है, हम उसके साथ निकट संबंध है हमारा, प्रेम के साथ करना है। बिना उसके जप करने से लाभ क्या है?
मतलब तो समझे नहीं आप? अरे जप का उद्देश्य क्या? बिट बिट राम 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 करना, यही सब जप है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा जो सवाल ये है कि एक बार राम बोल के वी हैव टू टेक अ पॉज एंड टू थिंक एंड देन नेक्स्ट टाइम वी हैव टू अगेन जप राम एंड देन अगेन पॉज, देन जप राम एंड देन अगेन पॉज। अच्छा, अगर तुम अपने लड़के का नाम लो तो हर बार ऐसे ही करते हो क्या? नहीं, एक बार नाम लिया तो आ जाता है ना उसके मन में भाव आ जाता है, ये लड़के का नाम है पूरा। हाँ, तो उसके लिए क्या हमेशा आपने प्रैक्टिस की थी कि ये राम का, ये मेरा सुनील नाम है मेरे लड़के का और ये है ये लड़का है, ऐसा प्रैक्टिस की था क्या? नहीं। ऐसा तो कभी नहीं किया। तो ये नाम के साथ में नामी जो है वो अभेद है, एक है। हाँ, हम जो दिलीप भाई सोचते हैं तो हम ये थोड़ी सोचते हैं कि हर बार सोचते थोड़ी हैं कि दिलीप भाई का रूप हमारे सामने आता है। हर बार नहीं, हम हर बार कभी भी नहीं सोचा हमने दिलीप भाई के बारे में। लेकिन जब हमने दिलीप नाम लिया है तो दिलीप आ गए हमारे सामने, तो हमारे मन में आ गए दिलीप। जी जी जी, ये भगवान के नाम में ही समस्या होती है, संसार के सारे नाम में कोई समस्या नहीं होती। वाह रे वाह, यही तो बोला है, भगवान का नाम कंटिन्यूसली, यानी पहले जानना चाहिए भगवान क्या है। अरे कृष्ण की लीला तो इतनी सब सुन लिया, कृष्ण का नाम लोगे तो हर बार क्या ही सोचोगे ये कृष्ण, ये नाम। यही मेरा सवाल है, तो नहीं, यही मेरा सवाल है महाराज कि जो यहाँ पे लिखा है हाउ इन मंत्र जब कैन ड्वेल ऑन द मीनिंग एंड द इमेज। एक बार हमको पूरी चित्र पिक्चर मालूम है कि रामकृष्ण देव ने क्या काम किया है, उनके क्या है अवतार है। अब हर बार तो हम सिर्फ रामकृष्ण देव का ही जप करेंगे ना, तो वो एक साथ ही तो आ जाता है, उसको हाँ। करने की जरूरत नहीं है। जी जो एक बच्चे को बोला जाए राम कृष्ण है जी, और हाँ ब्रह्मेशानंद को बोला जाए राम कृष्ण, दोनों के अर्थ में फर्क होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा महाराज। दोनों बार रामकृष्ण मेरे सामने आ जाएंगे, लेकिन वो रामकृष्ण और बच्चे के रामकृष्ण में बहुत फर्क होगा। जी, ये इतना पढ़ पुढ़ा के इतना हाँ। सब पता चल जाता है कि भाई कृष्ण क्या, उसके बाद कृष्ण का नाम लेंगे तो वो कृष्ण ही हो गया बस। राइट राइट, बस हाँ। वो मेरे तो कृष्ण का नाम और कृष्ण में क्या फर्क है? कोई नहीं है, नहीं, कुछ नहीं, बस नाम और नामी अभेद। जी जी बिल्कुल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज that if we go down, it would only be hotter and darker there. Now my question is, Maharaj, how can we go down unless we are at the top? Wherever we are. No, So, Maharaj, my question is, कि a person who is born on this earth, he is Brahman by itself, and by mixing with this earth and society, we become down, and now again we have to rise. ना ऐसा है कि दो तरह से, एक तो ये प्रश्न है कि जहां पर अभी हैं हम, हाँ, अभी हम संसारी बन गए हैं, अभी संसार में हैं, लेकिन हम रिट्रीट कर रहे हैं, हम रिलीजियस किताबें पढ़ रहे हैं, हाँ, हम मंदिर में जाते हैं, जी, तो हमारा नैतिक आदर्श है हमारा, हम बुरी चीज नहीं करते, चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते, जी, हम थोड़े दूसरे आदमियों से ऊपर है कि नहीं? जी है, यस। तो अगर उससे नीचे जाएंगे तब गर्मी होगी, मुश्किल होगी। अब तुम्हारा ये कहना है कि इसके ऊपर भी तो है, वो और बहुत ऊपर है, हाँ, अभी और ऊपर जाना है, लेकिन अभी भी तो तुम 10 सीढ़ी तो ऊपर हो, अभी 100 सीढ़ी ऊपर जाना है आपको जी, लेकिन अब 10 सीढ़ी से नीचे अगर जाओगे तो गर्मी ज्यादा लगेगी, कष्ट ज्यादा होगा। तो जिस स्तर से है उस स्तर से नीचे नहीं जाने का है, उस स्तर से और ऊपर जाना। ओके, राइट राइट, जी महाराज, जी महाराज। अब महाराज एक ठीक है, बिना सवाल का एक नहीं, बिना इसके मेरे पास एक सवाल है, यदि परमिशन दे तो पूछूं मैं? बोलो। हाँ, ये बुद्धिज्म सेज दैट जीरो से सृष्टि का निर्माण होता है। बुद्धिज्म में ये कहा गया है कि जीरो से सृष्टि का सर्जन होता है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि का सर्जन करते हैं और प्रलय भी ईश्वर करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जब बुद्धिज्म में ये बताया गया है कि जीरो से सृष्टि का सर्जन होता है, तो उसका प्रलय कैसे होता है?
अब ये आप जानो भाई, हम नहीं जानते। ये बुद्धिज्म के उसके ऊपर तो बड़ा खंडन मंडन चलता है, हम स्वीकार नहीं करते इसको। जी जी, तो ये प्रश्न जो है वो फिलोसॉफिकल प्रश्न है, ऐसा कोई लेना नहीं। बस बस महाराज, प्रणाम। श्रीमयी। प्रणाम महाराज जी। हाँ भाई बोलो, अ, तुम्हारा क्या प्रश्न है? हाँ महाराज जी, मेरा जो प्रश्न था वो लगभग दिलीप अंकल ने पूछ लिया है, फिर भी मैं पूछूं क्या? हाँ, हाँ। ओके। सवाल ये है, एक ही सवाल है। आफ्टर जपा एंड मेडिटेशन वी फील अ वननेस विद द वर्ल्ड और द यूनिवर्स क्रिएशन. It feels like there is nothing such as the I. But this feeling is fleeting. Soon we get busy with our activities and the I comes back, and so do our problems. How to maintain this state of no I after japa and meditation? ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने हमारी साधना को केवल जप और मेडिटेशन ही बना रखा है, लेकिन साधना मस्ट बिकम कंटिन्यूअस द होल डे। यानी हमारा सारा जीवन साधना में परिणित करना पड़ेगा, अलग अलग सिचुएशन में। आप जब मंदिर में बैठ जाएंगे तब एक प्रकार की साधना होगी, अकेले कमरे में रहेंगे तो एक प्रकार की होगी। हमने रायपुर में जब डिस्पेंसरी शुरू की तो हमारा एक छोटा सा कमरा था, वो आई डिपार्टमेंट था। वो सप्ताह में एक दिन डॉक्टर आता था, तो उस कमरे को हमने श्राइन बना लिया था। तो जितने डॉक्टर्स आते थे वो सब के सब वहां जाके प्रणाम करते थे और बैठते थे 2 मिनट 3 मिनट के लिए। अगर कोई पेशेंट नहीं आता था तो वो चले जाते थे वहां पर और बैठ कर ध्यान जप करने लगते थे। यानी हॉस्पिटल में वर्किंग सिचुएशन में भी हमने ऐसी सिचुएशन बनाई कि जिसमें हमारा ये जो मेडिटेशन का मूड है, ध्यान जप का मूड, ये एक प्रकार की बात है। दूसरी प्रकार की यह है कि जब आप बाहर आएंगे, संसार में आएंगे, तब उसके लिए कोई टेक्निक दूसरी बना ली। ये क्या है कि आंखें खोल के भगवान को देखना चारों ओर। ये हैबिट के ऊपर करती है, निर्भर करता है कैसे करोगे। एक पेशेंट में हम रोज भगवान को देखेंगे, 2 पेशेंट में भगवान को देखेंगे, 2 व्यक्तियों में भगवान को देखेंगे। जितने लोगों से हम मिलेंगे उसमें भगवान को देखने का प्रयत्न करें। तीसरा है स्तोत्र पाठ, स्वाध्याय। स्तोत्र पाठ कर लो, याद कर लो बहुत सारे स्तोत्र और कंटिन्यूअसली सुनो। आजकल तो ईयरफोन से लोग सुनाई करते हैं। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअसली प्रेजेंस ऑफ गॉड, भगवान हमारे साथ में विद्यमान है, इसको बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सांसारिक इनपुट मिलेंगे जो हमारे भावना, स्पिरिचुअल भाव को नष्ट करेंगे, उससे दूर रहना। जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे कहता हूँ कि भाई न्यूज़पेपर में कचरे के सिवा और कुछ नहीं है, गंदी बातों के सिवा और कुछ नहीं होता। टीवी, इसमें डिस्टर्बेंस होगा, थोड़ी देर होगा, उसके बाद में एक एडवर्टाइजमेंट यानी कमर्शियल ब्रेक आएगा, अच्छे सीरियल के अंदर ही होगा। अगर इस प्रकार का करेंगे तो आपको भाव कैसे बना रहेगा बोलो? वो सारा भाव नष्ट हो जाएगा। तो ये बनाने के लिए वन हैज टू बी, सारे जीवन को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रेगुलराइज करना। ठीक है जी मैम। हाँ। जी जी हाँ। जी मैम, एक ही सवाल था। थैंक यू, प्रणाम और महाराज। एक और क्वेश्चन था कि नहीं था? नहीं, यही था। नहीं, एक ही था। ओके, कमेंट। ठीक है, थैंक यू महाराज जी। चलो विभा, अनम्यूट करो। ओके। My question was, what is jad mind? We think all the time, then what's the meaning of a jad mind? Only when we think of God, then it is Chaitanya, otherwise it is jad. We think of different things, we read. No, you are wrongly taking it. The word जड़ जो है वो जड़ के चैतन्य के साथ में नहीं है यहाँ पे। इस जड़ का अर्थ है तामसिक। तामसिक में चैतन्य से संबंधित नहीं है। तामसिक, राजसिक, सात्विक है ना। तो तामसिक है नींद
आ जाती है, प्रमाद, आलस्य, निद्रा युक्त है, जी जी अप्रकाश, अप्रवृत्ति, गीता में सारा वर्णन है, तो तमोगुण बने। ओके, इट इज नॉट कॉन्शियस से रिलेशन नहीं है। जी जी। अच्छा, उसके बाद में तुमने एक कमेंट लिखा है, उसको पढ़ो तो। नहीं, वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साधना, तो आई हैव टू थिंक ओवर इट प्रॉपर्ली. I will think over No, it. no, 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 no. My point is that this is an important thing. You read it out. I will explain to it. This is very important. तुम उसको लास्ट में कर मत लिखना, लास्ट का मत देखना, लेकिन उसके पहले का जितना पोर्शन तुमने पढ़ा लिखा है उसको पढ़ो तो। 1 minute. Actually, हाँ, पढ़ो पढ़ो। Okay, 1 minute. But Swamiji, it's personal. Where we are, you know, where we are. That is wanted. I just wanted to ask. Actually, I don't have that question now. Yes. 1 minute. You are not getting it. मोबाइल फोन के अंदर है, आई कैनॉट डू बोथ द थिंग्स। उन्होंने तुमने कहा है कि हम डिफरेंट लेवल्स पे रहते हैं, और जब तक ये लेवल नहीं जाने, yes Swamiji, as the mind functions all the time, when we think of God only, then the mind is ये हो गया. The subject is on the spiritual experiences, which requires sadhana, and in sadhana we pass through different stages and find difficult to judge where we are. So it becomes very difficult for us to ask questions many times. you ask the same question, that where am I? You ask the same question. Okay. My situation is this. My meditation is this. I am doing meditation of God's form. My mind is getting restless. I sometimes get sleepy. My morality I practice like this. All these things, this situation where whatever your situation is, that you ask, and then I will be able to tell you where you are and what you have to do. This is a very important thing. हम महाराज के पास जाते थे, सत्स्वरूपानंद जी, दूसरे साधना, हमारे मन में प्रश्न उठते थे कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हमको ध्यान ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तब वो बताते थे, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम इसके बाद ऐसा करो, ये करो। तो एक स्टेज, जिस स्टेज पर आप पहुंचे हो उसका डिस्क्रिप्शन आपको करना पड़ेगा, तभी तो हम बता सकेंगे कि आप कहाँ आगे बढ़ोगे। अब इसमें यही है कि अगर इसको यू मे आस्क पर्सनली, और इफ यू थिंक इट इज अ जनरल क्वेश्चन, यू आस्क जनरली। गॉट माय पॉइंट? जी जी स्वामी, समझ में आया? जी स्वामी, ठीक है ना? जी स्वामी, जी स्वामी। हाँ, ओके, जी प्रणाम। ठीक है। जी रीता, Yes, Swamiji. अनम्यूट करो। Can you hear me, Swamiji? Hello? Yes, yes. Can you Yes, hear me? yes. I am hearing you. Okay, Swamiji. Swamiji, it is not clear to me as to what is meant by grace of mind. Mind wanders, is restless. We try to harmonize mind through japa, meditation, prayers, and worship. How can one get the grace of the mind? How do I know that I have the grace of mind's grace? I have the mind's grace. Then you wrote back to me, please tell me the page number where grace of mind is mentioned. That's all right. Okay. Then I wrote. Okay. Now I say grace. Take it, that's all right. You need not write it either. Okay, sir. You stop it. Stop. See, ये ठाकुर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, बंगाली में है, गुरु कृष्ण वैष्णव तीनेर दया होलो, एकेर दया बिने जीव छारे हारे छारे गेलो। ये सपना ठीक है? यस। सपना ओके ना? हाँ। यस। गुरु की कृपा हुई, गुरु ने मंत्र दीक्षा दे दी, आपको डायरेक्शन दे दिया, भगवान की कृपा हुई, अच्छे वातावरण में हैं आप, और वैष्णव के भक्त लोग भी मिल गए हैं, ये सब भी हुआ, लेकिन एक की कृपा, किसकी? मन की कृपा के बिना सब कुछ गड़बड़ हो गई। मन की कृपा होना चाहिए,
अब आपका ये प्रश्न है कि मन की ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ माइंड, भगवान मन की कृपा कैसे होवे, क्यों नहीं होती कृपा? तो उसका उत्तर ये है कि आप संसार के कामों में सब कुछ हो गया, वातावरण बहुत अच्छा मिल गया है और आप अकेले हैं, आपको संसार में पड़े नहीं है, फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब नहीं है, so many advantage, but you don't sit for meditation. तुम बैठोगे दूसरे लोगों के दोष देखोगे, बैठे पर निंदा पर चर्चा करोगे, टीवी देखने बैठोगे, न्यूज़पेपर देखने बैठोगे, तब क्या हुआ? आपके मन की कृपा नहीं, ये ग्रेस ऑफ माइंड नहीं मिली, आपने माइंड की ग्रेस प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, दूसरों के संसार के विषयों में भोग में लगे रहे। ये मन ही से तो होता है। जो साधना की बातें हैं वो मन ने नहीं लिया, तो ये क्या हुआ? ये इसे भगवान ग्रेस ऑफ माइंड इज नॉट देयर। तो भाई गुरु तो बोलता है भाई मैंने सब कुछ कर दिया। माँ शारदा कहती थी कि मैंने मंत्र दीक्षा के समय जो मेरे को देना था, करना था, सब मैंने कर दिया है, अब तुम करो। अब तुम नहीं करो तो भाई मैं क्या करूं? तो वी हैव टू स्ट्रगल। अभी बात हो चुकी है, वो पाल तोड़ने की बात है ना, वो ये एंकर उठाने की बात है, पाल तोड़ने की बात है। तो ये सब जो है ये है ग्रेस ऑफ माइंड, माइंड की मन की कृपा होनी चाहिए, इस प्रकार से ये। इज इट ओके ना? यस स्वामी जी। अच्छा ठीक। इतु घोष। प्रणाम महाराज। हाँ बोलो। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार्स आर क्रिएटेड बाय रॉन्ग थिंकिंग एंड एक्शंस, they can be erased by right thinking and action. This is from the text. What is the sanskar of a person? Is it only wrong or bad? Only wrong or bad thoughts working on the mind? जी हेलो। वो महाराज ने जो टेक्स्ट में लिखा है ना जी, वो इन वन कॉन्टेक्स्ट लिखा है। वो ये है चिंतन वगैरह के कारण, और उसको हम अच्छे चिंतन के कारण उसार बनेंगे, लेकिन संस्कार नहीं बनेंगे। हमारा मेन पर्पस अभी शुरू में है अच्छे संस्कार बनाना, बनेंगे जरूर, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के संस्कार, लेकिन बुरे संस्कार न बने, इसलिए हमें अच्छे संस्कार चाहिए। इससे धीरे धीरे हमारा मन संस्कार से अलग हो जाएगा। तो ये संस्कार तो अच्छे बुरे दोनों बनते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम अच्छे संस्कार बनाएं। जी जी। और सेकंड क्वेश्चन, आवाज आ रही है। जी, अब सेकंड क्वेश्चन है। महाराज जी सुन रहे हैं? हाँ, अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्मोनी ऑफ द बॉडी? इज इट अबाउट मूड्स और हेल्थ और समथिंग एल्स? No, harmony of body nothing to do with mood. Mood becomes a harmony of mind. खा लिया, अच्छी चीज बनाई थी खूब, तो खूब ज्यादा खा लिया, तो हमारे को नींद आ रही है, पेट भारी हो गया है, या फिर रात को नींद पूरी तरह नहीं आई, बहुत एवर एक्टिविटी, दिन भर काम किया, अब क्या है, क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, आई एम वेरी मच टायर्ड। अच्छा, तो दिस इज क्या है, फिजिकल डिसहार्मनी हो गई जी। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? बोलो जी, बोलो। अच्छा, गीता में क्या कहा भगवान ने?
युक्ताहार विहारस्य। बोलो आगे पूरा श्लोक बोलो। युक्ताहार विहारस्य युक्तावेष्टित चेतसः। नहीं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार अरे चेष्टा जो है वो युक्त होना चाहिए। कर्म में चेष्टा युक्त चेष्टा होना चाहिए, बहुत अधिक कर्म नहीं करोगे। युक्त स्वप्न और सोना भी जो है वो तो ठीक ठीक होना चाहिए, बहुत ज्यादा सोना नहीं है, बहुत कम सोना नहीं है। इससे जो है वो हमारी बॉडी जो है वो ठीक रहेगी जी, हार्मोनी रहेगी जी। सोना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट व्हाट थॉट्स कम टू द माइंड व्हेन फॉलिंग asleep and on waking up. This is from the text. These thoughts are the ones which prevail the mind while going to sleep, or thoughts. So my question is, these thoughts are the ones which prevail the mind while going to sleep, or thoughts which come to the form, come in the form of dream? नहीं नहीं, दोनों दोनों। ऐसा है कि ड्रीम जो है वो तो और भी गहरा होता है जी, वो बहुत गहरा होता है। लेकिन जब सोने के पहले और उठने के इमीडिएटली बाद जो थॉट होते हैं वो जो है वो रात को चलते रहते हैं। वो हमारे प्रोमिनेंट कॉन्शियस लेवल के प्रोमिनेंट स्लीप होते हैं, और ड्रीम जो होते हैं वो तो गहरे और भी गहरे स्तर से आते हैं जी। ये दैट इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, मेरा हो गया। प्रणाम महाराज जी। अच्छा सपना, यस महाराज। ये पढ़ो तो जरा। एक सपना ने एक पैसेज दिया था पेज 152 पर, अगर आप लोगों के पास वो हुए तो देख लीजिए जरा, पेज 152। Go within. महाराज जी, महाराज 152। जिन लोगों को मिल गया हो वो देख लेंगे पेज 152। ओके हाँ दिलीप भाई, दिलीप भाई। हाँ जी महाराज, जो भी हो कुछ आपको मिला तो देख लो जी। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। Second, you go within. Yes, you go within. What does it mean? Not somewhere inside this चलो body. चलो पढ़ो। You go within. What does it mean? Not somewhere inside this body, but into the mental and spiritual planes of consciousness. You come to a world vaster than this physical world. Your little mind gets in tune with the universal. Heart is the gateway to the plane of consciousness. There are hearts and hearts, physical, mental, spiritual hearts. These are all different अब ठहर जाओ यहाँ पे। consciousness. ठहरो 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 ठहरो, रुको रुको। हाँ रुक गया महाराज, रुको। हाँ, पहले उन्होंने कहा डाइव डीप, यानी मतलब यह है कि हम शारीरिक स्तर पर, फिजिकल स्तर से हटें। हम संसार का चिंतन करते हैं, शारीरिक स्तर से करते हैं, फिजिकल स्तर से करते हैं ना जी। हमारा मन हमेशा संसार का, फिजिकल संसार का ही चिंतन करता रहता है। उससे हटकर हम अंतर की तरफ जावें, विचारों के स्तर पर जावें, हम परमात्मा के स्तर पर जाने का प्रयत्न करें। अब परमात्मा पर जाने का भी अगर हम शारीरिक स्तर पर रहेंगे तो परमात्मा भी हमारे जो है वो चतुर्भुज रूप वाले होंगे और लड्डू खाने वाले होंगे, ये सब होंगे। तो उससे भी हमें आगे जाना पड़ेगा, परमात्मा की भी चिंतन बदलना पड़ेगी, हमें अपना बारे में भी चिंतन बदलना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं है, हमारे परमात्मा भी शरीर नहीं है, वो चैतन्य स्वरूप है। और तब धीरे धीरे आएगा। उसके बाद में जो कहा ना, वो आप सब जगह परमात्मा का चिंतन या सब जगह कॉन्शियसनेस का अनुभव होगा। देखो फिर से उसके ऊपर की बात पढ़ लो। अभी
तीन शरीरों की, तीन हृदय की बात बाद में आएगी। महाराज जी यहाँ 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब करना चाहता हूँ कि अभी ये आपने बताया था मेरे सवाल में, हाउ इन मंत्र जब कैन बी ड्वेल ऑन द मीनिंग एंड द इमेजिनिंग ऑफ द लिविंग पिक्चर ऑफ द डेटी लीड्स टू द अवेकनिंग ऑफ द स्पिरिट। तो यहाँ तो आपने ये आर्टिकल बता रहा है कि हमने ईश्वर की लीला और ईश्वर का कार्य जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और यहाँ आगे आ रहा है कि वी हैव टू गो बियॉन्ड इट। हाँ, बियॉन्ड, नेचुरली, डेफिनेटली। और जिस स्तर पे है उसी स्तर से तो होगा। अगर आप शरीर के स्तर पे हैं तो आपको रूप का ही चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं, अरे अभी आप अपने चिंतन कर रहे हैं, अपने घर का चिंतन कर रहे हैं, उसके बदले आप राम जी के अयोध्या का चिंतन करिए या वृंदावन का चिंतन किए। अभी भी यह भी भौतिक स्तर पर ही बने रहे हैं आप। लेकिन क्या करें, अब भौतिक स्तर पर हैं तो वृंदावन के स्तर पर ही जाइए। आगे जाएंगे तब आप कॉन्शियस लेवल पे आएंगे, बियॉन्ड कॉन्शियस लेवल। चलिए उस सेंटेंस को, आखिरी सेंटेंस को फिर से पढ़ के फिर उसके बाद में हृदय पे आ जाइए। महाराज, हार्ट इज द गेटवे टू द प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके हमने अभी हृदय के अपन ने पूरे डिटेल डिस्कस कर लिया है। हाँ, कर लिया आगे। देयर आर हार्ट्स एंड हार्ट्स, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हार्ट। तो वो फिजिकल हार्ट की बात तो हो गई, फिजिकल हार्ट तो चाहिए नहीं जी, बाकी तो वो फिर उसके बाद में फिजिकल हार्ट की चिंता सुनिए नहीं हो पाता। इसलिए क्या कहते हैं कि सोचो कि जहां हम हृदय में, सीने के अंदर एक हृदय, एक कमल का चिंतन करिए जी। कल्पना कीजिए कमल की। क्यों? क्योंकि हम फिजिकल हार्ट के बिना रह नहीं सकते। तो ठीक है, फिर यहाँ पे कमल की चिंता करिए। तो हम फिजिकल लेवल पे है तो फिजिकल लेवल पे है, उसके ऊपर अपने इष्ट को बिठा दीजिए। तो वो इष्ट भी जो फिजिकल लेवल वाले हैं, तो रूप आपने ला के वहां बिठा दिया, क्योंकि हम इसके बिना, चिंतन के बिना, फिजिकल चिंतन के बिना कर नहीं सकते। तो ये हो गया फिजिकल हार्ट। उसके बाद में हो गया मेंटल हार्ट। जब हम किसी का चिंतन करते हैं, ये बात हो रही थी ना, तुमने कहा था मेंटल हार्ट, हम सब कुछ चिंतन मन से ही करते हैं। तो हमारा मेंटल हार्ट, हम जो है मन का जो चिंतन कर रहे हैं, तो वो मन के द्वारा होता है। तो हमारे हृदय में कहाँ पे विचार आए, भावनाएं आई, मेरे को बड़ा कष्ट हुआ, ये सब कष्ट ये कैसे हुआ, ये फिजिकल मेंटल हार्ट जी। और फिर स्पिरिचुअल हार्ट जो होता है, ऐसे परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो कॉन्शियस लेवल जी, स्पिरिचुअल लेवल में जी। ठीक, आगे पढ़ो, आगे चलिए। हाँ, देयर आर इसके आगे, हाँ, these are all different planes of consciousness. As in ठीक है, ये हमने हो गया अलग अलग planes of consciousness. Concentric circles, yes. Let our little heart beat. Planes of consciousness. Yes. Now we going ahead. Let our little heart beat in tune with the cosmic heart. Know that the Atman permits the entire body, but of all the centers of the body, we feel the concentrated consciousness more in the heart. Withdraw your mind to the inner light. Practice this for a few moments. Then gradually you will have the experience of living consciousness. To the extent one's mind is pure, spiritual practice is successful. Swami Brahmanand used to tell us, as you go on with your spiritual practice, you will discover what the heart is, how to go deeper, what to discover. तो एक्चुअली वो बड़ी ऊंची बात कर रहे हैं भाई जी जी। यानी पहले तो अपने को सोचना चाहिए कि हम कॉन्शियसनेस हैं, हम चैतन्य सत्ता हैं, और उसके बाद में सारे संसार की जो चैतन्य सत्ता है उसके साथ में एकात्मता प्राप्त करना है। ये वेरी हाई लेवल, नो डाउट अबाउट। तो ये यानी जब हमने कहा, हमने चैतन्य की बात कही, तो मैं अगर चैतन्य हूँ तो सामने वाला व्यक्ति भी चैतन्य है, कॉन्शियस है। तो इस प्रकार से कॉन्शियसनेस सर्वव्यापी है, आकाश की तरह। तो उसके साथ में
एक है। तो पहले फिजिकल लेवल से ऊपर उठना है, उसके बाद में फिर स्पिरिचुअल लेवल पे आना है, और स्पिरिचुअल लेवल पे आकर उसके बाद में सर्वत्र परमात्मा का चिंतन करना है। तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी हाई। सपना, इज इट ओके? Yes, Maharaj. Very difficult, and I agree with you that this is a rather very high level of thing. Yes, yes. Let our little actually. और किसी को कोई प्रश्न है? Maharaj, बोलो। And then withdraw your mind to the inner light. That means consciousness. Consciousness. withdraw your अच्छा, mind और to the inner light. महाराज, इसके अंदर ही आगे लिखा हुआ है, withdraw your mind to the inner light. Practice Inner this light. for a few moments. What is this? A few वही moments. कॉन्शियसनेस, इनर लाइट, इनर लाइट का मतलब कॉन्शियसनेस ही है। अच्छा, practice for a few moments. हाँ, यानी अगर आप बाहर की तरफ से चारों तरफ भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो उसके बाद में अपने हृदय में भी भगवान का दर्शन करो। जी महाराज, ये वही है जो आप गाइडेड मेडिटेशन में कहते हैं ना, कि समेट के अंदर ले आना। अब वो तो पहले समेट के अंदर लाना, उसके बाद में सर्वव्यापी बाहर देखना, अंदर लाना, ये अब गाइडेड मेडिटेशन में अलग अलग। ठीक है, अब और किसी को प्रश्न है क्या? हाँ महाराज जी, कल जो आपका प्रवचन था पतंजलि योग सूत्र पे, उसमें मेरा एक सवाल था कि आपने बताया कि साधक को जीवन में 4 बाधाएं हैं, जिसमें से कसाय और रसास्वाद, मीन्स नो आनंद। आपको ध्यान करते समय आनंद नहीं आना चाहिए, मैंने जो सुना या समझा। तो यदि आनंद नहीं आना चाहिए तो ध्यान में क्या आना चाहिए? नहीं, ऐसा है कि वहां आनंद आएगा, आनंद आएगा, वो उसको आप मान सकते हो कि आपके साधना का एक इंडिकेशन है कि आपको आनंद आ रहा है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या आएगा? है नहीं, अल्टीमेटली क्या आएगा साधना में? अल्टीमेटली ज्ञान आएगा। ओके, ज्ञान और आनंद में फर्क है। हाँ, वही ज्ञान इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ, एंड बिफोर दैट इज यस 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 यस। ओके, ठीक है जी महाराज। अच्छा, एक प्रश्न है, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, भाई ये कैसा चल रहा है, ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, इसके संबंध में आपका फीडबैक मैं चाहता हूँ। जैसा ही चलने देवे या नहीं चलने देवे, कोई मॉडिफाई करना है कि नहीं करना है? और जो कुछ लोग आते हैं जाते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कुछ परमानेंट रह गए हैं और कुछ परमानेंट छोड़ गए हैं। तो इसके ऊपर सोच के आप लोग फीडबैक मुझे दीजिए, सभी लोग, कैसे चलना है या कुछ चेंज करना है, क्या करना? हमारा तो कहना है ये बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो कुछ आगे बढ़े ही है जीवन में, कम 1 साल के अंदर दिमाग तो कुछ अच्छा हुआ है हमारा। Yes, we are able to ask questions, get the reply, and practice that reply. That is very important for us. So we have negative, we read good articles. There are some people that कुछ लोग ज्वाइन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, they may not be interested. Anyway, आप लोग सोच के आप भी कुछ फीडबैक दीजिएगा। सुबेर, हेतु, देश दीजिएगा। नमस्ते नमस्ते प्रणाम नमस्ते। तो शांति मंत्र हो जाए। अंतिम धोरे स्वामी जी राम
शांति शांति शांति।